Today we have to do the exercise of chapter number 3, multiple choice question. Number 1, an element is made up of only one type of A. atom, B. chemical, C. molecule, D. compound. Correct option है बेटा A. Q is, what is chemical symbol for iron? A Fa है, B Fe, C Fi और D है Fo. करेक्ट ऑप्शन है B. Third, all atoms are thought to be made up of a nucleus surrounded by a cloud of A. electrons, B. neutrons, C. protons, D. all of the above. Correct option is A. electrons. Hydrogen is the simplest atom because it contains, option A है no electrons or protons, B. no electrons and one proton, C. one electron and no proton, D. one electron and one proton. Correct option is one electron and one proton. What is a negative ion? A. an atom that has gained a proton, B. an atom that has gained an electron, C. an atom that has lost a proton, D. an atom that has lost an electron. तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है B. an atom that has gained an electron. Question number 2 is true false. Number 1, the Rutherford-Bohr atomic model helps us to explain the periodic table. This statement is true. There are over 900 elements in nature. This statement is false. Approximately 92 elements occur in nature. Number 3, protons carry a negative charge. This statement is again false because protons carry positive charge. Number 4, mass number is equal to number of protons plus number of electrons. Again false statement because mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. Fifth statement is the nucleus of every atom contains neutron. This is false statement because you know that in simple hydrogen there is no neutron in the nucleus of hydrogen. Question number 3, which of the following statements are true of elements and which are true of compounds? Statement number 1, they contain only one kind of atom. So beta elements contain only one kind of atom. यहाँ elements आएगा. They cannot be broken down into simpler substances. Again, elements cannot be broken down into simpler substances. Third है they can be broken down into simpler substances. This statement will be according to compounds. मेरा ख्याल ये complete नहीं है कि simpler substances by chemical means, physical means से हम उनको simpler substances में break down नहीं कर सकते. They consist of different atoms in fixed proportion. Compounds, they are made up of atoms with same number of protons. Elements, they are represented by formulae. Compounds, they are represented by symbols. Elements. Question number 4, shown below is the symbol for carbon as it appears on the periodic table. बेटा ये देखिए C फॉर कार्बन और ऊपर उसका मैस नंबर शो किया और नीचे एटॉमिक नंबर. क्लियर? अब आपने बताना है कि व्हाट इज द मैस नंबर फॉर कार्बन. तो द मैस नंबर फॉर कार्बन इज 12. 2, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन. The atomic number for carbon is 6.
How many protons are there in the carbon atom? There are 6 protons in the carbon atom because its atomic number is 6. How many neutrons are there in this carbon atom? There are 6 neutrons in this carbon atom. How many electrons are there in this carbon atom? There are 6 electrons in this carbon atom. Because in neutral atom the number of electrons and protons are same. Question number 5. This question refers to the outline of periodic table below. The letters on this table are not the symbols of the elements. ये देखिए बेटा, ये पीरियोडिक टेबल शो किया हुआ है. हमें पता है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये अल्कली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 हेलोजन्स और ये 8th ग्रुप या 0 ग्रुप कहते हैं इसको, नोबल गैसेस. ये देखें कि A, B, C, D, E, F, G ये डिफरेंट लेटर्स से शो किया गया है. अब हमने पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रख के बताना है कि ये सारे जो ABCD से लेटर्स शो किए गए हैं, जो इनकी जगह है ये पीरियोडिक टेबल में, ये किसको शो कर रहे हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1, विच ग्रुप्स आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन. ये जो B एलिमेंट शो किया हुआ है वो पूछ रहे हैं कि किस ग्रुप में है. तो दिस इज़ इन ग्रुप 8 और आप ब्रैकेट में लिख लें नोबल गैसेस. C उसका B ऑप्शन है कि जो C लेटर इंडिकेट किया, ये दिखाया गया है पीरियोडिक टेबल में, ये किस ग्रुप में प्रेजेंट है ये वाला एलिमेंट. तो बेटा दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 7 एंड इट्स कॉमन नेम इज हेलोजन ग्रुप. या अगेन E, this element is present in group 1, commonly known as alkali metals. F is the element of group 2 and they are commonly known as alkaline earth metals. Here 2 है, which element is a noble gas. बेटा ये देखिए, ये जो B है ग्रुप इसका 8th है, नोबल गैस. ये फर्स्ट वाली हीलियम होगी, सेकंड कौन सी होती है, नियॉन. डी इंडिकेट द एलिमेंट नोबल गैस नियॉन. क्लियर. विच एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल. अल्कली मेटल अगेन दिस मेटल इज शोन, एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल. तो बेटा ये देखें, ये एलिमेंट दैट इज शोन बाय द लेटर E, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 1. अगर आप इसको देखेंगे ये कौन सा एलिमेंट है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. ये एलिमेंट किसको इंडिकेट कर रहा है, किस एलिमेंट को, पोटाशियम को. और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स. 4th है, विच एलिमेंट इज़ अ हेलोजन. बेटा ये देखें ग्रुप 7, इसमें C और D ये दोनों ही हेलोजन्स हैं. और पहला फ्लोरीन होता है, दूसरा ये फ्लोरीन और तीसरा ये कौन सा है, ब्रोमीन. C इंडिकेट क्लोरीन और D इंडिकेट ब्रोमीन. ठीक है. 2 एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. अगेन बेटा वही जो मैंने अभी आपको बताया था, C एंड D दोनों हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसमें C एंड D दैट इज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन in the halogen groups, 7 group. Clear. Which elements has 2 electrons in its outer shell. So group number indicates the number of electrons in the outer shells. The element that is in group 2, it will have 2 electrons in the outer shells, and this is magnesium. It is indicated in the periodic table by the letter F and is magnesium. Clear. Question number 6 is, the periodic table shows the structure of several particles. ये periodic table में particle A, B, C, D, E शो किए गए हैं. और फिर ये देखें इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है.
जैसे ये एक पार्टिकल ए है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 ही प्रोटॉन है और 12 ही न्यूट्रॉन है। एक बी पार्टिकल है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स 14 है। सी है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है और न्यूट्रॉन्स भी 12। डी पार्टिकल इज हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन 10 electron, 8 proton and 8 neutron. In the particle E, there are 9 electrons, 9 protons and 20 neutrons. Yeah? अब जो नीचे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपने देनी है इस पेपर को देखते हुए। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच 3 पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम्स। तो बेटा वो न्यूट्रल एटम्स आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल। तो ये देखिए आप टेबल में कि किन किन पार्टिकल्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ये देखिए एक तो ए हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन, बी 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन और फिर ये ई 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 protons. These 3 particles are neutral. They are not anions or cations because their atoms are having same number of electrons and protons. 2 है, which particle is a negative ion? What is the charge on this ion? बेटा ये देखें पार्टिकल D, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड किए हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से गेन किए हुए हैं, जिससे हमने उस ऑक्सीजन में देखा था। तो इट विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट विल बी एनाइन। तो विच पार्टिकल इज़ अ नेगेटिव आयन? डी पार्टिकल इज़ अ नेगेटिव आयन एंड द चार्ज ऑन दिस आयन इज नेगेटिव। विच पार्टिकल इज़ अ पॉजिटिव आयन? व्हाट इज़ द चार्ज ऑन दिस आयन? तो इसमें ये देखें कि पार्टिकल जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पार्टिकल सी है। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो पार्टिकल सी इज़ अ पॉजिटिव आयन, द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल इज़ पॉजिटिव। 4 है, यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई पार्टिकल ए। पीरियोडिक टेबल में आप जाएं तो देखें कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट्स द एटॉमिक नंबर एंड द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इंडिकेट द मास नंबर। द एलिमेंट्स विद दिस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज मैग्नीशियम। तो ये ए पार्टिकल कौन सा है? मैग्नीशियम एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बिलो। सोडियम आयन है, ऑक्सीजन मालिक्यूल है, एल्युमिनियम एलिमेंट है, मीथेन का मालिक्यूल है बेटा, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है और ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो अब हम फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्ट 2 एटम्स। लिस्ट से अब हमने ये देख के बताना है कि इनमें एटम कौन से हैं। तो बेटा ये जो है एल्युमिनियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है, दीज आर दी एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। 2 मालिक्यूल्स कौन से हैं? ऑक्सीजन मालिक्यूल, मीथेन मालिक्यूल। ठीक है, 2 आयंस कौन से हैं? ये सोडियम आयन कैटायन है, क्लोराइड आयन एनायन है। ठीक है, ये 2 आयंस पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट। ये देखिए ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सोडियम आयन, और ये आई और साथ नेगेटिव है। आई इज़ द सिंबल फॉर आयोडीन एंड इट हैज़ लॉस्ट गेंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दिस विल बी आयोडाइड आयन। इसको क्या बोलेंगे? आयोडाइड आयन। नेम द कंपाउंड मेड अप फ्रॉम सोडियम आयन एंड आयोडाइड आयन। ये दोनों ये ऑपोजिटली चार्ज आयन है, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, दूसरे ने गेन कर लिया हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें डेवलप हो जाएंगी और ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे सोडियम आयोडाइड। कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? सोडियम आयोडाइड। तो राइट
अ फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड, तो बेटा इसका फार्मूला होगा सोडियम आयोडाइड का फार्मूला Na और ये कैपिटल I। सी वट सॉर्ट ऑफ बाउंड होल्ड्स दिस कंपाउंड टुगेदर। अभी जैसा मैंने बताया कि दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी developed between them and they will pull close to each other and form sodium iodide compound. So this the bond between them will be ionic bond. This is an ionic compound. Here question number 8 is these diagrams represent the electrons in the outer shells of carbon and hydrogen. Use these to explain how covalent bonds are formed to hold one molecule of methane together. तो बेटा ये देखें, ये कार्बन का एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस पे आप यानी इंडिकेट किए हुए देख लें 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में ये देखें 4 और इनको उन्होंने क्रॉस से शो किया गया। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और ये देखिए उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस नॉर्मल हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसा हमें देखा था कि जब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है, तो जिसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी दिस कार्बन हैज़ द कैपेसिटी टू रिएक्ट विद, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और अकोमोडेट करने की इस शेल में कैपेसिटी है अभी। और कोई एलिमेंट उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इस तरह इसके पास कैपेसिटी है कि 4 दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये रिएक्ट करे। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं और मीथेन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो इस तरह बेटा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखें 4 हाइड्रोजन एटम आए और चारों ने इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया और ये मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है।